Hello everyone, welcome to Science Bubble. Today we are going to discuss the chapter second, that is acid, base and salt in a brief way. We will discuss this chapter in a brief way. It means we will discuss this full chapter in only one video. In only one video you will get all the information about this chapter, that is the acid, base and salt. We have already discussed all the subparts of these chapters in my previous videos. You can watch the playlist of Science Class 10th Chemistry. You can watch this playlist, Science 10 for Chemistry, from the same channel to view the complete chapter second. So in this video we will discuss the chapter acid, base and salt. So let's start the chapter without wasting the time. So the chapter is about the acid, base and salt. So basically what is acids? So these are the substances which have the show and taste. They turn blue litmus solution red. देखो second point क्या है? They turn blue litmus solution red. It means what is litmus? Litmus is generally a indicator. Litmus is generally indicator. So acid can change the color of this indicator to the red in color. For example, if the litmus is of color blue, when a drop of acid will fall on this blue indicator, this indicator will convert into the color red. When a drop of acid is fall on the blue litmus, so this will convert into the red color. They give H positive ions in the aqueous solution. So acid, for example HCl, when it hydrolysis with the help of water, so it dissociate into the H positive and Cl negative ions. So basically all the acids give H positive ions in the aqueous solutions. The fourth point is that the term acid. The acid has been derived from the Latin word acidus. This is the Latin word acidus, and the word acid is derived from this word. The word acid is derived from the Latin word that is acidus, and the meaning of acidus means sour in taste. So meaning of acidus is acid or sour in taste. Some of the example of strong acids are HCl, H2SO4, HNO3. These are the some strong acids. Basically there is a difference between the strong acid and weak acid, concentrated acid and dilute acid. We will discuss all of these parts in the next few minutes of this video. Some of the weak acids are like acetic acid, like CH3COOH. This is a weak acid. Oxalic acid, lactic acid. These are example of weak acids. Concentrated acid, it means concentrated. Concentration means it have less number of water amount. Less amount of water or solvent means it is concentrated. Dilute acid means dilute acid contains large amount of water. They contains actually large amount of water, solvent in the solution. Having more amount of acid and less amount of water is known as concentrated acid, and having more amount of water and less amount of acid is known as the dilute acid. Now what is base? These are the substances which are bitter in taste and soapy in touch. जो bitter in taste होते हैं और soapy in touch. They turn red litmus solution into blue. I already tell you that acids converts the blue litmus into red. Now जो base converts the red litmus into blue. This is the basic difference between the acid and blue on the effect on the nature of the litmus या फिर on the nature of indicator. They give OH negative ions in the aqueous solution. For example, NaOH when react with water,
it will dissociate into Na positive and OH negative. That is, base gives hydroxyl ion. This is hydroxyl ion. So basically acid gives H positive ions and base gives hydroxyl ion. Some of the example of strong base are NaOH, that is sodium hydroxide, KOH, potassium hydroxide, calcium hydroxide, CaOH2. This is also the example of slaked lime. This is also example of slaked lime. NaOH is the example of caustic soda. Now what is weak base? So this is a basic difference between the strong base and the weak base. Weak base is NH4OH, that is ammonium hydroxide. I will also tell about the weak base and strong base in the next some minutes. Basically, what is alkali? These are the bases which are soluble in water. So these are the some base which are soluble in water. For example, NaOH. If NaOH can dissolve in water, then this is a alkali, and actually this is happened. So NaOH, sodium hydroxide, is that type of base which are soluble in water, which can easily dissolve in the water. Actually, there are some white type pellets. There are some white pellets, white tablet pellets of the sodium hydroxide, NaOH, and these can easily dissolve in the water. So NaOH is a alkali. So what are alkali? Alkali are those base which are soluble in water. Example are sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide. Now what is salt? These are the compounds formed from the reaction of acid and base. When the acid and base react with each other, they get neutralized and they nullify each other effects to get neutralize the reaction. So basically a new product formed, that is known as the salt. So what is the example of salt? We will discuss here example of salt. Example. So some example of salts are NaCl, KCl. What I told you about the salt? Salt are those compounds which forms due to the reaction of acid and base. So when acid and base react with each other, for example, this is acid HCl and this is a base NaOH. So when they react with each other, here Na positive react with Cl, it form NaCl, and this H react with the OH, so it will form here H2O. So basically here salt formation take place. Basically here salt formation take place, and this is the salt, and this is also a neutralization reaction. This is also a neutralization reaction, because effect of acid is nullified by the base, and similarly effect of base is nullified with the acid. Now what are indicators? This is a new definitions. Indicator, these are those substances which change their color or smell in different type of substance. Like litmus is also example. Litmus is also an example of indicator which we have discussed already. For example, acids convert the color of litmus into the red color, and base converts the color of litmus into the blue color. Base converts the color of litmus into the blue color. So what are the type of indicators? So there are three types of indicator basically. First is natural indicator, second one is synthetic indicators, and third one is olfactory indicators. So natural indicator found in nature in plants. Natural indicators are found in the nature. It means natural indicator means they can they are not man-made. They can easily found by the nature. Actually, they are extracted from the plants. They are extracted from the plants. Extract from plants. But nature developed them. Nature developed them. That is why they are known as the natural indicators.
Example of natural indicators are litmus, red cabbage leaves extract, flowers of hydrangea plant and turmeric. Synthetic indicators. These are the chemical substances which are made by the man-made. These are made by the man and they are generally prepared in the laboratory. They are generally prepared in the laboratory by the chemist. So methyl orange and phenolphthalein are the example of these type of indicators. Now the third one is your olfactory indicators. These substances have different odor in acid and base. For example, onion. Onion converts its smell. Onion converts its smell, its fragrance in the acid and in the base. It have different type of odor or different type of smell in acid medium and different type of smell in the base medium. Okay, by the help of which we can detect easily whether the substance is acid or whether the substance is base. So basically indicators. The first example one is the litmus. Litmus converts the red. Actually litmus have red color in the acidic medium and litmus have blue color in the basic solution. Similarly, red cabbage have the red color in the acidic medium and green color in the basic medium. Similarly, flower of hydrangea plant have blue color in acidic medium and have pink color in the basic medium. Now turmeric have no change in the acid. Turmeric have no change in the acidic medium and it have red color in the basic solution. So the main example of the main important indicator here are litmus only, and here this is phenolphthalein and methyl orange. These both of are important for the exam point of view. So synthetic indicators have two examples like phenolphthalein and methyl orange. Phenolphthalein have colorless. Phenolphthalein have no color. It is just like the color of water. So phenolphthalein have no color in the acidic medium. Phenolphthalein have no color in the acidic medium and it have pink color in the basic medium. It have pink color in the basic medium. So, methyl orange have red color in the acidic medium and yellow color in the basic medium. Now these are the example of some olfactory indicators. Onion have characteristic smell and it have no smell in the basic solution and it have a characteristic smell in the acidic solution. Similarly, vanilla is also an indicator of olfactory indicator and clove oil is also example of olfactory indicators. Out of these three olfactory indicators, only onion is important for the exam point of view. Now, this is the main topic. This is very important topic of this chapter for the exam point of view and for the 11th and 12th class also. So basically we are here discuss the chemical properties of acid and base. The chemical properties of acid and base. So what is the chemical properties? Chemical properties of acid and base. So basically acids and base. The first chemical properties is their reaction with the metals. We will discuss here three chemical properties like reaction of metals with the acid and base. Reaction of metal with the acid and base. This is the first one. Reaction of metal carbonate and metal hydrogen carbonate with acid and base. This is the second one. And reaction of acid and base with each other. This is the third one. So we will discuss here three chemical properties of acid and base. Let us discuss first reaction of metal with the acid. So basically all the acids and all the bases when react with metals. So all acids and all bases when react with metals, they form the same product, that is the salt plus hydrogen gas. They release the same product, that is the salt plus hydrogen gas.
Okay, and this hydrogen gas can release by testing, can be tested by bringing burning candle near the gas bubble. It burst with a pop-up sound. It burst with a pop-up sound. Actually, when this hydrogen gas, the released hydrogen gas due to the reaction of metal plus acid, hydrogen gas release. For example, this is hydrogen gas bubble and these bubbles are releasing here. So these hydrogen gas bubbles are passed through the soap solution. For example, this is a beaker and this beaker contain some soap solution. So these hydrogen gas are passed out through this soap solution, and when these gas bubbles are bring near the burning candle, these bubble burst with a pop-up sound. And if a pop-up sound create, then we can easily detect that this is the hydrogen gas. This is also actually happens with the base. When base react with metal, salt plus hydrogen gas release. So base is sodium hydroxide, that is NaOH plus zinc, Na2ZnO2, that is sodium zincate plus hydrogen gas form. Now the second chemical properties is what? Second chemical properties is reaction of metal carbonates. Metal carbonate, it means metal and carbonate. For example, you have sodium and carbonate, Na2CO3. For example, you have metal hydrogen carbonate, like NaHCO3. So when metal carbonate and metal hydrogen carbonate react with acids, these react with also acids, they also form the same product, that is the salt plus carbon dioxide gas plus H2O. These metal carbonates and metal hydrogen carbonates, both of these when react with the acids, they form the same product, that is the salt plus carbon dioxide plus water. Now when they react with the base, when both of these species, metal carbonate and metal hydrogen carbonate, when react with the base, they does not react more. They does not form any product. So here no reaction will take place. Now the main question arises here is, how will you detect this CO2 gas? For example, in the first case, we detect hydrogen gas with the help of burning candle and a pop-up sound create, and then we called it that this is the hydrogen gas. Now how will we detect that this is the carbon dioxide gas that is releasing from this reaction? We will detect the carbon dioxide gas easily. For example, CO2 can be tested by passing it through the lime water. Simply we have to pass out this carbon dioxide gas. For example, these bubbles are of carbon dioxide gas now. These are the bubbles of carbon dioxide gas now. So we have to basically react with, we have to pass this gas with the help of lime water, through the lime water solution. We have to pass this carbon dioxide gas through the lime water solution. So what changes will be seen? So the lime water converts, this is the lime water, and when it reacts with the carbon dioxide gas, it will form calcium carbonate plus hydrogen plus water in the aqueous medium. So basically the precipitate of calcium carbonate is of marble, and these are of white color. So in the test tube, when it contain lime water, and when the carbon dioxide gas is passed out through this lime water, when the carbon dioxide gas is reacted with this lime water, so some solid compounds, that is of calcium carbonate, forms in the test tube, and these solid forms creates white milkiness. So lime water turns milky. Why lime water turns milky? Because
calcium carbonate is of white color, and milky means a solution of white color. Milky means a solution of white color, hence calcium carbonate is also of white color. So calcium carbonate forms forms white color, and that is why lime water color change into the milkiness, white milkiness. Now this is very important, that when excess of carbon dioxide is passed through the same solution, so what will happen? So when excess of, for example, you have prepared already calcium carbonate plus water. You have already prepared here calcium carbonate plus water. Now this is the calcium carbonate plus water, and you again pass this carbon dioxide through this solution. So here calcium bicarbonate will form. And calcium bicarbonate is of milkiness disappear, because this compound is soluble in water. So this compound is soluble in water, and no milkiness will appear now. The milkiness that was already prepared will be disappear from the solution. Now the third reaction is reaction of acid and base with each other. We have already discussed about this. So when acid and base react with each other, they form salt plus water. Okay, and we have already discussed some reaction of acid and base. Now this reaction is also known as the neutralization reaction. We have already also discussed this neutralization reaction, because the effect of acid is get neutralized with the help of base and vice versa. So reaction of acid and base is called the neutralization reaction. This is the example. HCl plus NaOH is known as the NaCl plus of H2O. Now when strong acid react with weak base, it form acidic salt plus H2O. It means if the acid is strong in the initial condition, then the salt form will be also of acidic nature. And if the base was strong, for example, we take strong base plus weak acid, then the salt form have the basic pH. So the salt will be of basic salt plus of H2O. And also if strong acid and strong base will react, the salt form will be of neutral pH. The neutral salt will form, neutral salt plus of H2O. These are three cases, and the last case is when weak acid react with weak base. When acid react with weak base, then also neutral salt will form. Neutral salt plus H2O will form. So this is all about the chemical reaction of acid and base. Generally, a 1 mark of question is asked from this topic, that is a strong acid and weak base, या फिर only the third chemical property. A 1 mark question is generally asked in the exam from the third chemical properties. Now this is the fourth chemical property, that is the reaction of metallic oxide, that is reaction of, for example, copper oxide. So reaction of metallic oxide with the acids like HCl. For example, you have CuO and it will react with HCl. So it will also form salt plus water. And here salt will be copper chloride.
chloride, and the water will form from here plus H2O. You can balance out this equation by your own because we have already discussed the chapter first, and in which we have already discussed how to balance the chemical equation. So metal oxides are basic in nature. Metal oxides are basic in nature. This is also main point. Metal oxides are basic in nature. So this is basic in nature, and HCl is acidic in nature. So when base and acid react with each other, you know that the salt plus water will form. The salt plus water will form due to the neutralization reaction. Calcium oxide, magnesium oxide are some basic oxide. Metallic oxide plus acid, salt plus water. So CaO plus HCl. When we balance it out, we have to multiply with the 2HCl. So calcium chloride plus of water will be formed. This is also example of what? This is metallic oxide, and it react with the acid. Now reaction of non-metallic oxide with the base. Yani it means how non-metallic oxide react with the base. So non-metallic oxide are acidic in nature. Non-metallic oxides are acidic in nature. So they will react with the base only. So they will react with the base only. Metallic oxides are basic in nature, so they will react with acid only. Base will never react with base. Base will never react with base. So metallic oxides are basic in nature, so that is why they react with acid only. And non-metallic oxides are acidic in nature, so that is why they react with the base only. So when non-metallic oxide react with base, so you know definitely that what will form when acid and base react with each other? Salt plus water. Salt plus water. So for example, this is carbon dioxide gas, that is CO2, and it will react with calcium hydroxide. It will react with calcium hydroxide. So basically what will form? Calcium carbonate plus of H2O. Calcium carbonate plus of H2O. That is when carbon dioxide gas react with base. So they will form salt plus water. So this is about the non-metallic oxide. Now let us discuss all of these reactions in a brief way. So reaction of acids. So reactions of acid, when reaction with metal carbonate, they will form salt plus carbon dioxide plus water. Now when acid react with metals, they will form salt plus hydrogen gas. Now when acid react with metal hydrogen carbonate, they react and form salt plus carbon dioxide plus water. Now when acid react with metal oxide means they are reaction with the base. So metal oxide are basic in nature, so when they react with base, they form salt plus water. This is all about the reaction of acid. Now reaction of base. When base react with metals, they form salt plus hydrogen gas. We have already do the example of sodium zincate, that is when zinc react with the sodium hydroxide, they form sodium zincate plus hydrogen gas. When base react with metal carbonates, here no reaction will take place. When base react with metal hydrogen carbonate, also there was no reaction. When base react with acid, they form salt plus hydrogen gas. Acids are example of non-metallic oxides. Yani it means non-metallic oxide are the example of acids. So when non-metallic oxide react with the base, so there is a neutralization reaction, that is a salt plus water gas. Yani water will form. Now let us discuss the next. So here what do all acid and all base have in common? So what is all acid and all base have common? You have already know about that. All acid have H positive ions in the common. All of the acids have H positive in the common when they dissociate with the help of water. So all acid give H positive ions
and similarly all the base give hydroxyl ion, that is the OH positive, OH negative ions. Here all acid have H positive ions in the common, so acid produce H positive ions in solution which are responsible for their acidic properties, and all base have OH negative hydroxyl ions in common. All acids give H positive ions, all base give OH negative ions. Now, so what will happen when acid and base react with the water? What will happen when acid and base are react with the water solution? So acid produce H positive ions. We have already discussed this. H positive ions cannot exist alone. For example, you know that when HCl will dissolve in the water, it will form H positive ions plus Cl negative ions plus H2O. Now, these H positive ions cannot exist alone. This cannot exist alone. So what will it do? It will react with the H2O to form H3O positive ions. To form H3O positive ions. And H3O positive ions is generally known as the hydronium ion. This is generally known as the hydronium ion. Right? So H positive react with water to form H3O positive, and when HCl react with water, so it will form H3O positive plus of Cl negative ions. Now, when base dissolve in water, they give OH negative ions. For example, NaOH when react with the water, it will form Na positive and OH negative ions. Right? When NaOH dissolve in water, it will form Na positive and OH negative ions. Right? So basically when magnesium hydroxide also react with water, it will form Mg2 positive and OH negative ions. And basically base soluble in water are called, which are called the alkali. Base are known as the alkali because they are soluble in the water. So while diluting acid, it is also, this is very important concept. This is very important concept. For example, we have already discussed about the concentrated acid and dilute acid. Right? Concentrated acids are those acids which have the less amount of water. Which have the less amount of water. And dilute acids are those which have more amount of water. Which have more amount of water. Now, the main question is that if we have to convert a concentrated acid into the dilute acid, if we want to convert a concentrated acid into the dilute acid, now we have to do what? We have to do that we have to add the more amount of water to that concentrated acid to convert it into the dilute acid. Now, basically, two conditions are created here. Basically what we can do, we can add water into the acids to make it dilute, and we can also add acid in more amount of water. We can add acid in more amount of water to make it dilute. But out of these options, what we have to do now? While diluting the acid, it is always recommended that the acid should be added to water. Acid should be always added to water and not water to the acid. It means we cannot add water to the directly acid to convert it into the dilute acid. We can add acids in the large amount of water. We can add acid to the large amount of water to convert it into the dilute acid. We cannot do it reverse. It means we cannot add water into the acid to make it dilute. Is it clear? Why this happens? If we do this, if we added water into the acid, what impact it can cause? What it can cause? So because
the process of dissolving, because the process of dissolving an acid or base in water is highly exothermic reaction. And what happens is generally in the exothermic reaction, a large amount of heat is released in the exothermic reaction. So what can this heat cause? So this heat can cause, it means it can increase the temperature of beaker. Or it may splash out through the beaker and may cause burning, burn your face or maybe your hand or anything else. So basically water is not added to the acid solution. We must not have to do. It is always recommended that acids are added in the water. So this is the correct way, this is incorrect way. If water is added directly to the acid, the heat generated due to exothermic reaction may cause the mixture to splash out and cause burns, and the glass container may also break due to excessive local heating. So adding water to acid may cause mixture to splash out and break the glass container. So mixing of an acid or base with the water result in decrease of concentration of ions per unit volume. Such a process is called the dilution. So basically we have to do add acids in the water to make it dilute acid. We can add concentrated acid to the water to make it dilute, and not the reverse reaction. So what is universal indicator? Universal indicator. So universal indicator is a mixture of several indicators. It shows different colors at different concentration of H positive ions in the solution. Now we have already discussed about the phenolphthalein indicator. If you remember that phenolphthalein have no color in the acid. No color change in the acids. It means it appears just as the colorless solution in the acid, and it gives a pink color in the base. So if we add this indicator, this phenolphthalein indicator, to any other indicator which also shows color in the acids, so it may develop a new indicator, which will gives the color in acid also, and in which will gives the color in basic solution also, and that may help to detect the acid and base solution very easily. So basically universal indicator is that type of indicator. So universal indicator is a mixture of several indicators. It shows different color at different concentration of H positive ions in the solution. So what is pH scale? A scale of measuring H positive ions. For example, you know that when HCl react with water, it dissociate into the H positive ions. So some acids can give H positive ions very easily and in large amount. So these are the strong acids. The acids which can give H positive very easily, and in large amount, these type of acids are known as the strong acids. And which cannot give H positive in the very large amount, these are known as the weak base. So P in pH means the potential in the German word which means power. So pH means neutral solution, and pH less than 7 is known as the acidic solution, and pH more than 7 is known as the basic solution. So these are the strong acid which have the strong acid have the pH, generally less than 7, and base have the pH more than 7. Right? So these are about the strong acid, and weak acid have the pH near about somewhat 3 to 7, and acid have the pH generally near about 0 to 3. So these are the strong acid and these are the weak acid, and the base which have the pH like 7 to 9 or 10, these are the weak base,
these are the weak base, and having the pH 10 to 14, these are the known as the strong base, right? So these are the some basic example of weak base, strong base, weak acid and strong acids. On diluting an acid, pH will increase, and diluting a base, pH will decrease, right? है उसमें जो P है, P का मतलब है पोटेंच, P का मतलब ही क्या है यहाँ पे पोटेंच, यानी इसका मतलब क्या है हिंदी में अगर बात बोलते इसका मतलब है यहाँ पे पोटेंशियल यानी कि क्षमता, राइट? तो इसका मतलब है पोटेंशियल यानी कि क्षमता यानी कि पावर, पावर ऑफ व्हाट, P यानी P मतलब पोटेंश एंड H मीन्स हाइड्रोजन आयंस, H मीन्स हाइड्रोजन आयंस, यानी कि जो पावर है H पॉजिटिव आयंस की वो कितनी है, पावर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, राइट? तो देखो पीएच का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बनता है माइनस लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयंस, ये फॉर्मूला होता है पीएच का, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है? तो अभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि पीएच होता है इक्वल टू माइनस लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयंस। देखो H पॉजिटिव आयंस जितने ज्यादा बनेंगे, यानी कोई एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर, देखो कोई HCl का सॉल्यूशन है, ठीक है? HCl के सॉल्यूशन के अंदर अगर बाय चांस H पॉजिटिव आयंस ज्यादा बने हैं, है ना, हमने लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी ये स्टडी किया है कि जो हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयंस होते हैं वो कब बनते हैं, जब वाटर में हाइड्रोलिसिस होता है, यानी जब HCl है, एसिड को वाटर के अंदर ऐड किया जाता है तो H पॉजिटिव आयंस बनते हैं, आयंस रिलीज होते हैं। अब आयंस जब रिलीज होते हैं तो वो आयंस का अमाउंट कितना होगा, यानी किसी सॉल्यूशन में हो सकता है अमाउंट H पॉजिटिव ज्यादा हो, किसी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव कम है। तो देखो H पॉजिटिव आयंस जितने ज्यादा हाई रहेंगे तो ये वाली वैल्यू के सामने क्या है, नेगेटिव। देखो बाय चांस क्या है कि जो वैल्यू जितनी ज्यादा हाई है, ये वैल्यू ज्यादा हाई है, H पॉजिटिव ज्यादा है ना, H पॉजिटिव ज्यादा है, लेकिन इसके सामने नेगेटिव लगा हुआ है, तो जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है एक्चुअली वो वैल्यू उतनी ज्यादा स्मॉल होती है। देखो अगर क्या है कि कोई वैल्यू है, एक वैल्यू है -100, एक वैल्यू है -10, तो इसमें से क्या है कि माइनस, देखो ये वैल्यू 100 है, ये ज्यादा है, ये 10 है, लेकिन क्या है कि नेगेटिव जो साइन है वो माइनस के आगे लगने के बाद, यानी एक बड़ी वैल्यू के सामने अगर नेगेटिव लग जाता है इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, एक्चुअली में कम है, ये वैल्यू ग्रेटर है, ये जो -10 की वैल्यू है ये ग्रेटर है, ठीक है? पहले क्या था कि 100 ग्रेटर था 10 से, लेकिन जैसे इन दोनों के सामने मैंने नेगेटिव लगाया, नेगेटिव लगाने से क्या हो जाता है, केस रिवर्स हो जाता है। अब -10 है उसकी वैल्यू ज्यादा है, -100 कम है, ठीक है? तो -100 स्मॉल पावर वैल्यू है, तो क्या कि माइनस लगने की वजह से जो H पॉजिटिव है वो वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है? यहां से ये मतलब निकल के आया है कि जो pH है माइनस लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव, यानी कि अगर किसी चीज का pH की H वैल्यू, H पॉजिटिव वैल्यू अगर ज्यादा है तो उसका pH क्या होगा, कम होगा, उसका pH क्या होगा, कम। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, देखो एक आपके पास कर्व होता है, ये 0 कर्व, ये 14 कर्व, 0 से लेके 14 तक एक स्केल चलता है, मेजरमेंट स्केल चलता है पीएच का, ठीक है? जहां पे जो पीएच की वैल्यू होती है 0 से लेके 14 तक। अब जो वैल्यू 0 है, जो वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है? पीएच यानी कि क्या है, कम है। पीएच जितना ज्यादा कम होगा इसका मतलब क्या है कि जो माइनस लोगैरिथम H पॉजिटिव, यानी कि जो H पॉजिटिव की वैल्यू है वो उतनी ज्यादा हाई रहेगी। देखो यहाँ पे H पॉजिटिव ज्यादा है ना, H पॉजिटिव आयंस ज्यादा है, यहाँ पे ये H पॉजिटिव देखो कुछ ज्यादा है, तो जितने ज्यादा H पॉजिटिव रहेंगे उसकी वैल्यू उतनी ही कम रहेगी, पीएच की वैल्यू उतनी क्या रहेगी, कम। यानी कि अगर जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, एसिड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका पीएच उतना ही ज्यादा क्या होगा, कम, राइट? पीएच अगर कम तो एसिड उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, यानी कि H पॉजिटिव आयंस की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है इस कर्व में ऐसे, ठीक है? ये कर्व है जो एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज कर जाते हैं यहाँ पे, जैसे हम 0 की तरफ जा रहे हैं, तो ठीक है? 7 पे वो न्यूट्रल होता है, H पॉजिटिव यानी कम होते हैं, यानी मिड क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है? उसके बाद OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पे H पॉजिटिव आयन्स बिल्कुल लेस हो जाते हैं, H पॉजिटिव आयन्स बिल्कुल लेस, और जिसकी वजह से H पॉजिटिव आयन जितने ज्यादा कम रहेंगे उसका पीएच वैल्यू उतनी ज्यादा हाई रहेगी। तो पीएच वैल्यू हाई होने से वो एसिड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, एसिड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, जैसे पीएच इंक्रीज करेगा।
राइट तो जितना ज्यादा पीएच कम होगा तो वो उतना ही क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। जैसे अगर क्या कि एक यूनिवर्सली ये क्या कि पीएच पेपर पे इफेक्ट है, पीएच ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस से पीएच पेपर पे इफेक्ट है। जैसे हमारा गैस्ट्रिक जूसेस होता है जो कि हमारी क्या है कि स्टमक में होता है, जो जूस होते हैं लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, जो केमिकल्स होते हैं उनका पीएच क्या होता है, अबाउट 1.2। लेमन जूस खट्टा होता है, जो एसिड होता है क्या होता है, 2.2 पीएच होता है उसका। ऐसे प्योर वाटर और ब्लड का पीएच क्या होता है, 7.4। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में 101% जरूर आता है। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसका पीएच कितना होता है, 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, उसका पीएच क्या होता है, अबाउट 14। राइट तो पीएच जनरली क्या है कि पीएच के वैल्यू में बारे में आपको बता दिया कि जो पी है उसका मतलब क्या होता है, पोटेंस होता है। ए स्केल होता है फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड द पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या होता है, एक स्केल होता है जिसकी वजह से हम हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो मेजर कर सकते हैं। द पी इन द पीएच, जो पी पीएच में है उसका क्या मतलब है, पोटेंस मीनिंग पावर। On the pH scale, we can measure pH from 0 to 14. pH should be taught for simply as a number which indicates the acidic or basic nature of solution. Higher the hydronium ion concentration, lower is the pH value. हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा हाई रहेगी उसका pH उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, कम रहेगा। द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। जो न्यूट्रल सॉल्यूशन उसका पीएच क्या रहता है, 7। जो वैल्यू लेस देन 7 होती है पीएच से उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन। और जो पीएच वैल्यू 7 से ग्रेटर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन OH नेगेटिव, यानी OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और वो क्या होता है, बेस होता है, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, तो ये पीएच का एक स्केल दिया गया है आपके पास, ये कलर दिए गए हैं पीएच पेपर पे। द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड डिपेंड, एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो जनरली किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस पे। अगर H पॉजिटिव आयंस का नंबर ज्यादा है तो उसका पीएच क्या रहेगा, कम रहेगा। H पॉजिटिव आयंस ज्यादा होना यानी पीएच उसका कम रहता है, क्योंकि पीएच का फॉर्मूला ही यही बनेगा, माइनस लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयंस। तो H पॉजिटिव जितने ज्यादा हाई रहेंगे उतना ही वैल्यू वो नेगेटिव में ज्यादा बड़ी है, नेगेटिव जो वैल्यू बड़ी होती है वो एक्चुअली में कम वैल्यू होती है, तो उसका पीएच क्या रहेगा, कम रहेगा। राइट इफ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ऑन द सेम कंसंट्रेशन से 1 मोलर, अगर क्या कि हम HCl ले, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले और एसिटिक एसिड ले, राइट और दोनों क्या कि सेम कंसंट्रेशन पे ले, सम 1 मोलर ले, देन दिस प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, तो ये भी हाइड्रोजन आयंस है वो डिफरेंट अमाउंट में बनाएंगे। ठीक है, एसिड दैट गिव राइज टू मोर H पॉजिटिव, जो एसिड जो H पॉजिटिव आयंस को ज्यादा रिलीज करेगा उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे HCl क्या एक स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा और एसिटिक एसिड क्या रहेगा, एक वीक एसिड रहेगा, क्योंकि H पॉजिटिव आयंस यहाँ पे कम होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द पीएच। उसके बाद हम करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में पीएच का हमारे पास क्या रोल है, देखो जैसे सबसे पहले कंसेप्ट है और प्लांट एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। क्या प्लांट और एनिमल्स होते हैं जो पीएच सेंसिटिव होते हैं, यस। जो हमारी बॉडी जो वर्क करते हैं वो भी एक फिक्स पीएच रेंज में काम करती है। ठीक है, जैसे आवर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8, जो हमारी बॉडी वो 7 से लेके 7.8 पीएच में काम करती है। अगर इससे पीएच ज्यादा हो जाता है या इससे पीएच कम हो जाता है तब भी हमारी बॉडी है जो वो वर्क करना मतलब है कि थोड़ा सा एबनॉर्मल वर्क करना स्टार्ट कर देगी, यानी कि वो नॉर्मल नहीं रहेगी। Living organism can survive only in a narrow range of pH change when pH of rain water, जैसे रेन वाटर है अगर उसका pH भी चेंज किया जाता है या फिर उसको लेस देन 5.6 होता है, जैसे रेन वाटर है उसका pH है 5.6 से कम आ जाता है। नॉर्मल वाटर का pH कितना होता है, 7 होता है। जो नॉर्मल रेन वाटर होता है उसका pH हो सकता है 5.6 हो सकता है। तो 5.6 से अगर pH लेस आ जाता है, 5.6 से अगर लेस पीएच आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि इट्स विल बी एसिड रेन। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर, जब एसिड रेन फ्लो करेगी रिवर में, नदियों में जाएगा वो पानी उसका एसिड रेन वाला, तो इट लोवर्स द पीएच ऑफ रिवर वाटर, तो रिवर का जो नदियों का पानी है उसका पीएच भी डाउन आ जाएगा, जिसकी वजह से आपका वाटर कैसा बन जाएगा, एसिडिक बन जाएगा। और एसिडिक वाटर बनने से जो एक्वाटिक लाइफ है वहां पे जो फिशेज वगैरह है रिवर में उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी उनके सर्वाइवल में। ठीक है, तो पीएच का क्या है कि सेंसिटिव होते हैं प्लांट भी और एनिमल्स भी। व्हाट इज द पीएच ऑफ द सोइल इन योर बैकयार्ड, आपके बैकयार्ड में जो यानी जो गार्डन है टाइप है तो वहां पे जो सोइल है उसका पीएच क्या रहेगा।
तो प्लांट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक पीएच रेंज, जो प्लांट होते हैं वो भी एक स्पेसिफिक पीएच रेंज में ही काम करते हैं फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ, उनकी हेल्थी ग्रोथ के लिए। तो जो पीएच होता है सोइल का वो भी क्या है कि एक लिमिट में, एक रेंज में ही काम करते हैं। जैसे एक हेल्थी सोइल के लिए जो पीएच है वो 6.5 से 7.5 होना जरूरी है, ठीक है, किसी भी प्लांट की एक नेचुरल ग्रोथ के लिए, राइट। तो ये जो सोइल है उसका पीएच होना जरूरी है। अगर सोइल का पीएच इससे कम है तो उसको हम बोलते हैं एसिडिक सोइल है, यानी वहां पे एसिडिक मिट्टी बन चुकी है, वो मिट्टी कैसी है, एसिडिक सोइल हो चुकी है। अगर इससे कम पीएच है, तो इससे ज्यादा है तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो बेसिक सॉल्यूशन है, यानी बेसिक सोइल है वो, ठीक है। तो एसिडिक सोइल है, उसको नॉर्मल करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम वहां पे बेस यूज करेंगे, और अगर क्या है कि बेसिक बन चुके तो वहां पे हम एसिडिक डालते हैं। तो एसिडिक सोइल को अगर हमें ठीक करना है तो हम वहां पे बेस यूज करते हैं। जैसे हम चोक पाउडर टाइप यूज कर सकते हैं, बेस यूज कर सकते हैं वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट टाइप, ठीक है। तो ऐसे आप पीएच भी चेक कर सकते हो, यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से आप पीएच भी चेक कर सकते हो आपके यहाँ पे जो गार्डन पे जो मिट्टी है उसका। आपने क्या करना है, 2 ग्राम सोइल लेनी है जो आपने टेस्ट ट्यूब में ले ली, जिस भी सोइल का आपको पीएच चेक करना है। आपने उसमें 5 ml ऑफ वाटर ऐड किया, ठीक है। आपने उसको अच्छी तरह से मिक्स आउट कर लिया, शेक किया कंटेंट को। शेक करने के बाद आपने उसको फिल्टर कर लिया। फिल्ट्रेट करने के बाद जो फिल्ट्रेट है, यानी जो लिक्विड वाला मटेरियल बचा है, जो लिक्विड मटेरियल बचा है, फिल्ट्रेट बचा है, आप उस फिल्ट्रेट पे क्या अप्लाई करोगे, इंडिकेटर अप्लाई करोगे। कौन सा, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर की पेपर की हेल्प से आप कलर चेक करोगे। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर में जो कलर रेंज होगी उस कलर के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि मतलब पीएच कितना होगा मिट्टी का, राइट। उसके बाद है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी एक पीएच पे काम करता है, यानी कि उसमें जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, ठीक है, राइट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स होते हैं उनका पीएच भी अभी हमने बताया था कि 1.2 के आसपास होता है। तो वो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है वो भी एक फिक्स रेंज में ही काम करता है, एक पीएच रेंज में काम करता है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ये फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड्स। अगर क्या कि इंडाइजेशन नहीं हो पा रहा है, यानी कि डाइजेशन प्रोसेस अगर अच्छे से नहीं हो पा रही है, अगर हमने ओवर ईटिंग कर लिया है, तो हो सकता है कि जो हमारा स्टमक है वो बहुत ज्यादा एसिड अमाउंट में प्रोड्यूस कर दे, एंड दिस कोज पेन एंड इरिटेशन, जिसकी वजह से पेन और इरिटेशन हो सकती है। टू गेट राइड ऑफ दिस पेन, अब इस पेन से राहत पाने के लिए पीपल यूज क्या करते हैं, बेस यूज करते हैं। उन बेस को हम क्या बोलते हैं, एंटासिड्स बोलते हैं। One such remedy must have suggested by you at the beginning of this chapter। एक ऐसी ही रेमेडी आपने स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में आपने सजेस्ट की होगी। These antacids neutralize the excess of acid। ये जो एंटासिड्स होते हैं, ये जो एक्सेस ऑफ एसिड को जो रिलीज हो जाता है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी एसिड के इफेक्ट को खत्म करने के लिए बेस यूज किया जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या यूज किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। MgOH2 जो कि क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MOM भी बोलते हैं इसको। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ए मेल्ट बेस इज ऑफन यूज फॉर दिस पर्पज। तो इस पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एक एंटासिड्स है जो कि यूज किया जाता है न्यूट्रलाइज करने के लिए। किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, एक्सेस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे भी पीएच है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एक पीएच की रेंज है, वो काम करती है। ऐसे ही आपके पास पीएच चेंज एज द कोर्स ऑफ टूथ डीके। अगर क्या कि आपकी जो टूथ पे जो पीएच है अगर वो चेंज हो जाता तो उससे भी क्या कि आपकी जो टूथ डीके है वो स्टार्ट हो सकती है। तो वहां पे भी हम क्या कि एक पीएच रेंज की नीड होती है, और पीएच रेंज की नीड को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोलगेट करनी पड़ती है, ब्रश करने होते हैं, और वही कोलगेट क्या होता है, एक बेस सॉल्यूशन होता है। टूथ डीके स्टार्ट होता है व्हेन द पीएच ऑफ दिस माउथ इज लोअर देन द 5.5। अगर आपका टूथ डीके यानी स्टार्ट हो जाएगा अगर आपके माउथ का जो पीएच 5.5 से कम रहता है तो, क्योंकि जो टूथ इनेमल होता है आपके पास मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, यानी जो व्हाइट कलर का जो टूथ इनेमल, व्हाइट कलर होते हैं जो दांत में, ठीक है, वो एनेमल की लेयर होती है, वो मेड अप ऑफ होती है कैल्शियम फॉस्फेट की, कैल्शियम फॉस्फेट की लेयर बनी होती है। वही कैल्शियम फॉस्फेट की जो लेयर होती है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होती है हमारी बॉडी में, इट डज नॉट डिसॉल्व इन द वाटर, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती।
बट इट इज कोरिडेड, लेकिन उसमें जंग लग सकता है व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5। अगर पीएच माउथ में 5.5 से कम आ जाता है तो वहां पे क्या है कि जंग लग सकता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में वो कंटिन्यूसली एसिड प्रोड्यूस करते रहते हैं बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर, जो वो शुगर को डिकम्पोज करते हैं, एंड फूड पार्टिकल्स को रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। जो हमने खाना खाया है उसके बाद अगर हमारे माउथ में कोई शुगर का पार्टिकल या कोई फूड पार्टिकल रह जाता है तो हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो उसको एसिड्स में क्या कि एसिड प्रोड्यूस करते रहते हैं, उनका डिग्रेडेशन करके, उनको ब्रेक डाउन करके। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस टू क्लीन दिस माउथ आफ्टर ईटिंग फूड, तो इसका बेस्ट वे है, इसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने माउथ को कंटिन्यूसली क्लीन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सम टूथपेस्ट। तो यूजिंग टूथपेस्ट भी यूज कर सकते हैं, विच आर जनरली कैसी होती है, बेसिक होती है फॉर क्लीनिंग द टीथ, कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट द टूथ डिके। और टूथ डिके से हम बच सकते हैं क्योंकि वो जो टूथपेस्ट होती है वो बेस होती है, वो हमारे बेस जो हमारे माउथ में ऑलरेडी एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करेगी, उसको खत्म कर देगी, राइट। उसके बाद है नेचर भी प्रोवाइड्स करता है न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन, यानी कि देखो एक क्या कि एक ये प्लांट होता है जिसको बोलते हैं नीटल का प्लांट होता है। और नीटल प्लांट क्या होता है कि जब आप क्या है कि जैसे ये पिंच कर जाता है या आपको लग जाता है, इसकी स्टिंग लग जाती है इसको, तो ये एक एसिड रिलीज करता है और इस एसिड की वजह से क्या कि आपको ईचिंग हो सकती है। अब इस ईचिंग को प्रोड्यूस करने के लिए या फिर इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कि एक ऐसा ही एक प्लांट होगा, ठीक है, जो आपको इसके इफेक्ट से बचाता है। देखो क्या होता है, नेटल इज ए हर्बिकस प्लांट विच ग्रोज इन द वाइल्ड, इट लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर विच कोज पेनफुल स्टिंग व्हेन टच्ड एक्सीडेंटली। अगर आपको ये चुभ जाए तो ये क्या कि पेनफुल मतलब पेन हो सकता है आपको एसिड की वजह से। दिस इज ड्यू टू द मिथेनोइक एसिड सिक्रेटेड बाय देम, क्योंकि मिथेनोइक एसिड रिलीज करता है ये प्लांट। एक ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ डोग प्लांट। तो डोग प्लांट क्या है कि आप यूज कर सकते हो, डोग प्लांट के पत्ते को क्या कि आप लगा सकते हो, रब कर सकते हो उसी एरिया में जहां पे आपको ये जो नीटल प्लांट है वो चुभ गया है, पिंच कर गया है। तो विच ऑफन ग्रोज, देखो ये जो प्लांट है डोग प्लांट है वो ऑफन ग्रो कहाँ ग्रो करेगा, बिसाइड द नीटल इन द वाइल्ड। ये नीटल प्लांट के पास ही मिलेगा आपको, जहां भी आपको क्या कि नीटल प्लांट है वहीं से आपको दर्द स्टार्ट हुआ उसी प्लांट के आसपास आपको मिलेगा डोग प्लांट। कैन यू गैस द नेचर ऑफ द डोग प्लांट, क्या आप नेचर बता सकते हो डोग प्लांट का नेचर कैसा होगा, तो नेचर कैसा होगा इसका बेसिक, क्योंकि नेटल प्लांट आपका कैसा था, नेटल प्लांट आपका था एसिडिक इन नेचर। तो डोग प्लांट ने उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कैसा केमिकल रिलीज किया, बेसिक। सो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट टू लुक आउट, आपको पता होगा नेक्स्ट टाइम कि आपको क्या देखना है। इफ यू एक्सीडेंटली टच ए नेटल प्लांट व्हाइल ट्रैकिंग, आर यू अवेयर ऑफ एनी अदर इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडीज ऑफ सच स्टिंग्स। तो ऐसे ही क्या कि कुछ अगर आप कुछ ट्रेडिशनल रेमेडीज के बारे में जानते हो तो उसके बारे में थोड़ा सा मतलब क्या कि देखो। उसके बाद क्या कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है जहाँ पे आपको एसिड्स मिलता है, जैसे कि विनीगर है, सिरका, वहाँ पे एसिटिक एसिड आपको मिलता है। ऑरेंज में आपको सिट्रिक एसिड मिलता है। टैमरिन इमली में आपको टैट्रिक एसिड मिलता है। टमाटो में आपको ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। शो मिल्क जो कि दही होती है उसमें आपको लैक्टिक एसिड मिलता है। लेमन में आपको सिट्रिक एसिड मिलता है। एंड स्टिंग होती है, जो चींटी है उसको काट लेते हैं तो उसमें मिथेनोइक एसिड होता है। एंड नीटल का जो स्टिंग है जो अभी हमने बात की उसमें भी मिथेनोइक एसिड होता है। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस है या फिर कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है, सोर्सेज है क्या कि जिसमें जो एसिड मिलता है ये उसके बारे में है। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन है कि एग्जाम में बन सकता है, बनता भी है यहाँ से, कि नेम द टाइप ऑफ एसिड दैट प्रेजेंट इन द लेमन। ऐसे पूछ लेगा कि लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, तो सिट्रिक एसिड। किसी में भी पूछ सकता है, वो ऑरेंज में भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो ये 4 क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश रहेगी इन सभी क्वेश्चंस को कराने की। तो ये क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करने हैं, राइट। तो फर्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट द सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो पहला साल्ट है या फिर जो पहला क्या है कि यहाँ पे बेस है, जो फर्स्ट केमिकल्स जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेसिकली NaOH। तो इस वीडियो में हम उसकी प्रिपरेशन के बारे में और उसके यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हो सकता है आपसे उसका कॉमन नेम पूछ ले, हो सकता है इसका कॉमन नेम पूछ ले आपसे,
हो सकता है इसकी प्रिपरेशन की एक रिएक्शंस आपसे कंप्लीट करवा के देख ले, ठीक है। तो हो सकता है आपको इसके जो यूजेस है उसके बारे में पूछ ले। हो सकता है कि जो इसकी रिएक्शन में जो बायो प्रोडक्ट बनते हैं यानी जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनते हैं उसके यूज के बारे में आपसे पूछ ले। तो यहाँ पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 टॉपिक है जो इस एक सोडियम हाइड्रोक्साइड से आपसे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो हम सभी क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है हम इसकी प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज सिंथेसाइज्ड और प्रिपेयर्ड थ्रू द क्लोर एल्कली प्रोसेस। देखो इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस इसलिए बोलते हैं, देखो क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही से बनता है। देखो इस वीडियो को ध्यान से देखना और एक एक पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन यही है कि इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं। देखो क्लोर मीन्स क्या है, क्लोरीन। क्लोर मीन्स क्या है, क्लोरीन, राइट। एंड अल्कली मीन्स क्या है, बेस। कौन से बेस, द बेस दैट आर डिसॉल्व्ड इन द वाटर। सो क्लोर अल्कली प्रोसेस बोला जाता है इसको, ठीक है। क्योंकि इस रिएक्शन में जो फॉर्मेशन, देखो इस रिएक्शन में जो रिएक्शन होती है इसकी प्रिपरेशन के टाइम पे, देखो यहाँ पे एक क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होती है और एक बेस की फॉर्मेशन होती है जो कि एक्वस में है, राइट। तो इस वजह से इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोला जाता है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉमनली कॉल्ड ब्रीन सॉल्यूशन। देखो आपने यहाँ पे क्या लिया है, NaCl का सॉल्यूशन लेना है, एक्वस सॉल्यूशन, और इस एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, ब्रीन सॉल्यूशन। तो एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीन सॉल्यूशन। ब्रीन सॉल्यूशन क्या है, तो ब्रीन सॉल्यूशन इज बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का। ब्रीन सॉल्यूशन इज बेसिकली क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, एक्वस सॉल्यूशन, राइट। एंड द डिकम्पोजिशन ऑफ ब्रीन टेक प्लेस। देखो इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन कराते हैं। किस चीज का डिकम्पोजिशन कराते हैं, ब्रीन सॉल्यूशन का हम यहाँ पे डिकम्पोजिशन कराते हैं। यानी कि आपने क्या लेना है, देखो NaCl प्लस ऑफ वाटर, आपने ब्रीन सॉल्यूशन लेना है किसी बीकर में, और फिर आपने वहां पे 2 इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर देने हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और वो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड आपका किससे कनेक्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी से। तो आपने बेसिकली वहां पे इलेक्ट्रोलिसिस ही करवाना है, राइट। देखो आपने NaCl लिया प्लस H2 वाटर लिया, राइट। NaCl लिया प्लस H2 वाटर लिया आपने। ये सॉल्यूशन देखो, ये आपके पास एक बीकर है, ये आपके पास क्या है, एक बीकर है, राइट। यहां पे हमने क्या है कि इनलेट और आउटलेट क्या है कि उसके लिए सिस्टम कनेक्टेड कर रखा है। तो आपने यहाँ पे इस बीकर में क्या लेना है, NaCl प्लस ऑफ H2O लेना है, राइट। तो NaCl और H2O ये ब्रीन सॉल्यूशन है, आपने इस बीकर में कंटेनिंग में लिया। आपने क्या किया, देखो इसको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, ये एक बैटरी है, बैटरी से आपने इसको कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट होने के बाद देखो क्या होगा, देखो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ऐसे यहाँ पे ये ब्रेक डाउन होकर किस में कन्वर्ट होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है, ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका ब्रेक डाउन किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या है, ब्रेक डाउन किया जाता है एक इलेक्ट्रोलाइट का, राइट। तो इसमें क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे एक Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे ही क्या कि देखो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये NaCl से आया है, H2 पॉजिटिव H पॉजिटिव OH नेगेटिव से आया है। तो जब ये सॉल्यूशन में बन चुके हैं, यानी कि देखो सॉल्यूशन में क्या है, Na पॉजिटिव बन चुका है और H पॉजिटिव बन चुका है, ऐसे ही OH नेगेटिव बन चुका है और Cl नेगेटिव बन चुका है। देखो अब होगा क्या, जो नेगेटिव वाले पार्ट है, ठीक है, जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव के पास। जो नेगेटिव है पार्ट है वो कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव के पास, एनोड के पास जाना पसंद करेगा। ऐसे जो सोडियम है Na पॉजिटिव है वो कहाँ पे जाना पसंद करेगा, इस वाले नेगेटिव वाले के पास जाना पड़ेगा, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड के पास। ये 2 इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, इन इलेक्ट्रोड्स के पास जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली देखो जो Na पॉजिटिव है और H पॉजिटिव, अब ये दोनों के दोनों ही, ये बोथ ऑफ दीज कैटायंस
नाउ वांट्स टू गेट न्यूट्रलाइज, ये न्यूट्रलाइज होना चाहते हैं, ठीक है। कहां पे गए हैं ये गए हैं कैथोड के पास, राइट। ये कहां पे गए हैं कैथोड के पास, जो कि क्या था, नेगेटिव पॉइंट था, नेगेटिव था। तो कैथोड क्या है, इनको इलेक्ट्रॉन्स देता है, कैथोड गिव्स इलेक्ट्रॉन, कैथोड गिव्स इलेक्ट्रॉन, बिकॉज according to the direction of the batteries, electrons are coming here, electrons are coming here due to the direction of battery. So this is the direction of electron. So cathode gives electron to Na positive, cathode can gives electron to Na positive, and it get neutralized for the formation to form sodium neutral. Similarly, H positive can take electrons to convert into H radicals. But the main question is here, विच वन गेट न्यूट्रलाइज फर्स्ट, इन दोनों में से कौन न्यूट्रलाइज होगा पहले। तो देखो जो सोडियम और हाइड्रोजन में से देखो जो सोडियम है वो ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, और जो हाइड्रोजन है वो कम रिएक्टिव है। तो जो कम रिएक्टिव होगा वो इलेक्ट्रॉन पहले एक्सेप्ट करेगा, जो कम रिएक्टिव होगा वो इलेक्ट्रॉन पहले एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है H पॉजिटिव है वो जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, राइट। देखो H पॉजिटिव उसने इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट किया यानी रिडक्शन किया, और H रेडिकल्स में फॉर्मेशन हुई। सिमिलरली एक और रिएक्शन ऐसे ही होगी, यानी दो H पॉजिटिव ऐसे ही कन्वर्ट होके H रेडिकल्स बनाएंगे, और यही दो H रेडिकल्स कंबाइन करके एक H2 की फॉर्मेशन करेंगे हाइड्रोजन गैस की। देखो तो कैथोड पे आपके पास क्या फॉर्म हो चुका है, हाइड्रोजन गैस, कैथोड पे क्या फॉर्म है, हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली यहाँ पे देखो अब जो पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट पे कौन गया है, पॉजिटिव पार्ट पे एक तो Cl नेगेटिव गया है और एक OH नेगेटिव गया है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो OH का कम है, तो OH का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो OH पहले न्यूट्रलाइज होगा। OH पहले जब न्यूट्रलाइज होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। वो किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजन में, और Cl किस में कन्वर्ट होगा, Cl2 में, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि देखो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है कि डिस्चार्ज जल्दी होगा, न्यूट्रलाइज होगा, ठीक है। जब क्लोरीन जल्दी न्यूट्रलाइज होगा तो वो यहाँ पे एनोड के पास जाएंगे, ठीक है। तो एनोड के पास जाने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या होगा, बेसिकली क्या है कि जो मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहा हूँ ये थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का है, ठीक है। ये 11th या 12th क्लास में आप इसके बारे में स्टडी करोगे, ठीक है। आपने क्या कि बेसिकली क्या लर्न करना है, सिर्फ ये रिएक्शन है वो उसके बारे में लर्न करना है। ऐसे क्या करेगा, मतलब क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और ये क्लोरीन रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे दूसरा रेडिकल क्लोरीन नेगेटिव Cl रेडिकल प्लस इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद ये दो क्लोरीन मिक्स एड अप होके Cl2 बना लेंगे, राइट। तो इसलिए यहाँ पे जो एनोड पे क्लोरीन की गैस की फॉर्मेशन, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन। बेसिकली जो आपको लर्न करना है वो ये लर्न करना है कि क्लोरीन गैस इज डिपोजिट एट द एनोड व्हाइल द हाइड्रोजन गैस इज डिपोजिट एट द कैथोड, ठीक है। द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड एट द कैथोड, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी फॉर्मेशन हुई कैथोड पे। As NaOH and alkali and chlorine gas are present in the final product, this process is known as the chlor-alkali process। और ये आपको रिएक्शन है वो लर्न करनी है। तो बेसिकली जो आपको अभी स्क्रीन पे लिखा हुआ है सिर्फ वही लर्न करना है, जो मैंने आपको बताया वो थोड़ा क्या की फॉर्मेशन थी, ठीक है, वो हाई स्टैंडर्ड के लिए है। 10th क्लास के लिए सिर्फ आपको जो अभी लिखा हुआ है पीपीटी पे वही आपको लर्न करना है, उसके अलावा आपको लर्न नहीं करना है। इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगी, ठीक है। आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट इसके यूज के बारे में। देखो यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। देखो पेपर इंडस्ट्री में बेस का यूज किया जाता है तो वहां इसका यूज होता है। सोप इंडस्ट्री में बेस का यूज किया जाता है तो NaOH एक बेस है तो वहां इसका यूज किया जाता है। तो सोप फॉर्मेशन में, पेपर इंडस्ट्री पेपर फॉर्मेशन में, एंड डिटर्जेंट्स में इसका यूज किया जाता है। सेकेंड इट इज यूज्ड फॉर डीग्रीसिंग मेटल्स, तो मेटल को डीग्रीस करने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड इट इज यूज्ड टू रिमूव सल्फरस इंप्योरिटीज फ्रॉम द पोर क्वालिटी क्रूड ऑयल बाय प्रोसेस कॉल्ड कास्टिक वॉशिंग। तो कास्टिक वॉशिंग से इसका एक नाम भी आता है कि इसको कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। कास्टिक सोडा किसको बोला जाता है, NaOH को, राइट।
तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस जो बने, देखो कास्टिक सोडा NaH को बोला जाता है, और ब्रीन सॉल्यूशन किसको बोला जाता है, ब्रीन सॉल्यूशन किसको बोला जाता है, NaCl प्लस H2O। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम ब्रीन सॉल्यूशन बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपका बनता है क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या था, क्लोर एल्कली प्रोसेस इसलिए था क्योंकि वहां पे क्लोरीन प्लस बेस की फॉर्मेशन भी हो रही थी, इसलिए उसको क्लोर एल्कली प्रोसेस बोला जाता है। फोर्थ, इसके यूज आ सकते हैं, तो यूज इसका कहां पे है, देखो पेपर में, सोप इंडस्ट्री में एंड डिटर्जेंट्स में, राइट। उसके बाद डिग्रीसिंग मेटल में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद देखो हाइड्रोजन जो बनती है, जो हाइड्रोजन गैस बनती है उसके भी यूज पूछ लेते हैं, तो ये फ्यूल्स में भी यूज किया जाता है, अमोनिया की फॉर्मेशन में या फर्टिलाइजर्स फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। ऐसी जो क्लोरीन है गैस, जो क्लोरीन गैस फॉर्म होती है, क्लोरीन का देखो वाटर ट्रीटमेंट में, यानी वाटर को ट्रीट करने के लिए, यानी जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है क्लोरीन का, ठीक है। तो क्लोरीन को एक एज ए डिसइंफिकेंट भी यूज किया जाता है, जिससे मतलब है कि जो जर्म्स किलिंग है वो की जाती है, जो वाटर में जो जर्म्स है उसको किल करने के काम आता है क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन एक डेंजरस गैस है, ठीक है। तो स्विमिंग पूल्स में इसका यूज किया जाता है जर्म्स को किल करने के लिए। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड जो प्लास्टिक होती है, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो प्लास्टिक होती है उसकी फॉर्मेशन में भी इसका यूज किया जाता है। CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स थे जो पहले यूज किए जाते थे, एक एज ए रेफ्रिजरेटर में, एक एज ए गैस के रूप में, फ्रीज में एक एज ए गैस के रूप में यूज किया जाता था, लेकिन कुछ टाइम से इसको बैन कर दिया गया है। उसके बाद पेस्टिसाइड्स में इसका यूज किया जाता है। NaOH का आप यूज पढ़ चुके हैं डिग्रीसिंग मेटल्स में, सोप एंड डिटर्जेंट्स में, पेपर मेकिंग में एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स में। इन दोनों का यूज किया जाता है क्लोरीन का और बेस का ब्लीच में। और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन की जाती है H2 प्लस Cl2, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को मिला के HCl गैस की भी फॉर्मेशन की जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस की, राइट। तो ये इसके बारे में सब कुछ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में एवरीथिंग इज क्लियर राइट नाउ, ठीक है। तो जो आपका स्क्रीन पे दिखा है सिर्फ वही आप लर्न करेंगे 10th क्लास के अकॉर्डिंग, वही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहां से इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। देखो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो इसकी जो फॉर्मेशन है वो देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इज सिंथेसाइज्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस। देखो जो फर्स्ट वीडियो में मतलब फर्स्ट अभी से पहले सॉल्ट जो कॉमन हमने ये बेसिक केमिकल्स किया था, उसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन में क्लोरीन बनी थी, याद है ना, प्रोड्यूस फ्रॉम द क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है, ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। तो आपने इस क्लोरीन का ड्राई स्लेक्ट लाइम के साथ रिएक्शन करा देना। ये आपके पास स्लेक्ट लाइम है, कैल्शियम ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपने इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपने क्लोरीन की रिएक्शन करा देनी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्शन, तो ये बना है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस ऑफ H2O फॉर्मेशन। तो ये आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, ये आपका जनरली क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग डर्टी क्लॉथ इन द लॉन्ड्रीज एज ऑफ ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीच करने के काम आता है कॉटन को और लिनिन को इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी कि जो कोई भी नॉन मेटल्स है उनको ऑक्सीडेशन कराने के काम आता है, जैसे C+, ये तो है क्या कि सिंपल है, एक रिएक्शन है। या फिर हम बात कर सकते हैं जैसे इथेनॉल है, उसको ऑक्सीडेशन कराना है, इथेनॉल को ऑक्सीडेशन कराना है, एसिड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हैंस यूज्ड एन ऑक्सीडाइजर इन मैनी इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज द डिसइंफिकेंट्स व्हिच इज यूज्ड फॉर डिसइंफिकेंट वाटर टू मेक पोटेबल वाटर, ठीक है। तो एज ए डिसइंफिकेंट्स का भी की तरह भी इसका यूज किया जाता है, यानी कि जर्म्स किलिंग में, क्योंकि इसमें क्या है, क्लोरीन गैस प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका भी यूज कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज किया जाता है एज ए डिसइंफिकेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर डिसइंफिकेंट वाटर टू मेक इट पोटेबल वाटर। दिस इज ऑल अबाउट द ब्लीचिंग पाउडर। Now let's discuss about the baking soda. What is baking soda? The formula for the baking soda is NaHCO3, that is sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate. Let's discuss its preparation and use. So the basic
बेसिकली बेकिंग सोडा, द सोडा कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ास इज बेकिंग सोडा। देखो बेकिंग सोडा का हम यूज कहाँ पे करते हैं, किचन में, बेकरी आइटम में। समटाइम इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज NaSCO3। NaSCO3। It is produced using sodium chloride as one of the raw materials। तो NaCl का यूज किया जाता है इसको फॉर्मेशन करने के लिए। आपने NaCl लिया, उसमें वाटर ऐड किया, उसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐड किया CO2 प्लस उसमें अमोनिया ऐड किया। ये आपके पास क्या है, अमोनिया गैस। तो ये ऐड करने से आपके पास एक फॉर्मेशन होती है NH4Cl की, जो की है अमोनियम क्लोराइड, और एक बनता है आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपके पास क्या है, बेकिंग सोडा। ये आपके पास क्या है, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि क्या होता है, एक बेस। जनरली हम जो ये केमिकल्स पढ़ रहे हैं इनमें सारे बेस ही है। कैन यू कोरिलेट व्हाई इट इज यूज्ड एज न्यूट्रलाइज एन एसिड? क्या तुम कोरिलेट कर सकते हो कि व्हाई इट इज यूज्ड एज न्यूट्रलाइज एन एसिड? क्योंकि क्या है, बेस है। ठीक है, इट इज ए माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। तो जो कुकिंग में, यानी कि आपने बोला किचन में यूज किया जाता है, तो जब इसको हीट किया जाता है तो बेसिकली ये रिएक्शन बनती है NaSCO3। ये गिव्स हीट पे देने के बाद क्या देता है आपको, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। उसके बाद क्या है कि देखो बेकरी आइटम्स में जैसे केक है, केक में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, उसको फ्लफी बनाने के लिए, ठीक है, उसको फुला फुला बनाने के लिए और उसको सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाने के लिए तो बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। तो वो क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पे देखो जब हम ये यूज करेंगे, ठीक है, ये हमने क्या किया, अपने केक में ऐड किया और फिर हमने उसको क्या किया, हीट किया। अब हीट करने के बाद वहां पे देखो CO2 गैस बनती है और वही CO2 गैस उसको स्पॉन्जी बनाती है और फ्लफी बनाती है, उसको सॉफ्ट बनाती है, राइट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गॉट वेरियस यूज इन द हाउसहोल्ड्स। यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हम जो यूज करते हैं वो बेकिंग पाउडर बनाने के में भी यूज करते हैं। देखो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों में क्या है कि कोई ज्यादा खास डिफरेंस है नहीं, ठीक है, दोनों एक ही बात है, लेकिन छोटा सा एक डिफरेंस है कि जो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर होता है उसमें जनरली क्या करते हैं हम, जो बेकिंग सोडा है उसी बेकिंग सोडा में कोई एसिड ऐड कर देते हैं। इसी बेकिंग सोडा में कोई एडिबल एसिड हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। तो फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड इट इज ए मिल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। देखो आपने क्या किया, कोई मिल्ड एडिबल एसिड आपने ऐड कर दिया किसके अंदर, बेकिंग सोडा के अंदर। तो बेकिंग सोडा प्लस मिल्ड एडिबल एसिड विल बी फॉर्म योर बेकिंग पाउडर, राइट। तो व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स इन वाटर, देखो ये है आपका क्या है, बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर में क्या है, देखो ये क्या है आपके पास, बेकिंग सोडा, और ये है क्या है, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव यानी फ्रॉम एनी एसिड। आपको पता है अभी तक कि जो एसिड है H पॉजिटिव रिलीज करते हैं। तो ये फॉर्मेशन क्या करता है, CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम साल्ट ऑफ एनी एसिड। जैसे आपने NaSCO3 लिया प्लस आपने वहां पे एसिड लिया CH3COONA, राइट। अब देखो आपने जब इसको हीट किया तो CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, CH3COONA। यहाँ पे आपका क्या है, एसिड है, सॉरी यहाँ पे क्या है आपका एसिड, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है आपका एसिड है, ये आपने क्या लिया है, एसिड। तो जो आपका फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे वो क्या है, इट्स ए सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। तो ये जो मिक्सचर है, दिस मिक्सचर इज नोन एज द बेकिंग पाउडर, दिस मिक्सचर इज नोन एज द बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ड्यूरिंग द रिएक्शन कोज ब्रेड और केक टू राइज मेक देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। तो सॉफ्ट और स्पंजी बनाने के लिए हम यही यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर भी यूज कर लेते हैं, राइट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। तो एक मिल्ड बेस होने की वजह से ये एक जो एंटासिड्स होता है, लाइक जो इनो होता है, आपका इनो प्रोडक्ट है, इनो में भी यूज किया जाता है। तो इनो बेसिकली क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही है इनो,
ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे केक वगैरह बनाने में कई बार हम इनो का भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बीइंग एल्कलाइन बेस होने की वजह से इट न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। इट इज आल्सो यूज्ड एंड सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, क्योंकि वहां पे ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन एक्सेस अमाउंट में होगी तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करेगी तो वो एज ए आपकी जो फायर है उसको मतलब है कि कम करने में हेल्प करेगी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। So fourth one is your baking powder. Baking powder we have already discussed. This is the baking powder, that is the for making baking powder which is mixture of क्या है, baking soda plus mild edible acid. ठीक है, तो mild edible acid देखो ये रिएक्शन आपको लर्न करनी है। तो एक डिफरेंस क्या है बेकिंग सोडा में और बेकिंग पाउडर में, देखो बेकिंग सोडा में क्या है, हैज ओनली वन इंग्रेडिएंट, इसमें क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा जनरली क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और बेकिंग पाउडर क्या है, जनरली कंसिस्ट ऑफ मैनी इंग्रेडिएंट्स लाइक बाइकार्बोनेट्स, टिपिकली बेकिंग सोडा एंड एसिड सॉल्ट्स। तो इसके अंदर एसिड भी होगा एक और बेकिंग सोडा भी होगा, यानी कि NaSCO3 प्लस ऑफ एसिड। तो दो मटेरियल इसमें हो सकते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द 5, that is the washing soda. So basically washing soda is what? The formula of washing soda is sodium carbonate dot 10 molecules of water. The preparation of washing soda is very simple. You have to just do another chemical that can be obtained from sodium chloride is Na2CO3 dot 10 molecules of water, that is the washing soda. ठीक है, you have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. आपको पता है कि जो सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 उसकी फॉर्मेशन कहां से हुई थी। देखो आपने जब NaHCO3 इसकी आपने हीट किया था, इसको आपने हीट किया था तो वहां पे आपकी Na2CO3 की फॉर्मेशन हुई थी। अगर आपको याद है तो देखो ये रिएक्शन मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। ये रिएक्शन देखो, यहाँ पे ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन यहाँ पे देखो। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन थी देखो यहाँ पे NaSCO3 इसको आपने हीट किया था तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 आपको मिला था, राइट। तो इसी रिएक्शन से आपका क्या है, वॉशिंग सोडा हम प्रिपेयर करेंगे। तो NaSCO3 को जब आपने हीट किया था तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 की आपकी फॉर्मेशन हुई थी। तो यही जो सोडियम कार्बोनेट आपने यहां से लिया है, इसी सोडियम कार्बोनेट को आप जस्ट रिएक्शन कराओगे किसके साथ, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ, राइट। वहां पे क्या बनेगा आपका सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड दिस इज द वॉशिंग सोडा, और यही आपका वॉशिंग सोडा है। तो ये भी क्या है, एक बेसिक ही सोल्ट है, ये क्या है, एक बेसिक सोल्ट है। यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, उसके बाद क्या है, यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। So sodium carbonate washing soda is used in glass, soap and paper industry. It is used in the manufacture of sodium compounds such as borax. ठीक है, बोरेक्स क्या होता है, एक मटेरियल होता है जो कि क्या कि जो केमिकल्स इंडस्ट्री में या जो केमिस्ट्री की में जो बीकर्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, हार्ड प्लास्टिक होती है, तो वो बनाए जाते हैं उसे बोरेक्स से। बोरेक्स ग्लास बोलते हैं क्योंकि ये जो ग्लास होते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट को झेल सकते हैं, ज्यादा टेम्परेचर अटेन कर सकते हैं, ब्रेक नहीं होंगे इसलिए। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है फॉर डोमेस्टिक पर्पस में। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। इन यूज से एक बेसिक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, यहाँ से ये क्वेश्चन जनरली आता है कि जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो वॉशिंग सोडा आपको याद रखना है, वॉशिंग सोडा यूज किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द वॉशिंग सोडा। Now last remain is your POP, that is the plaster of Paris. POP, plaster of Paris. देखो POP प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने यूज देखा भी होगा, POP है उसके बारे में सुना भी होगा। तो इसकी प्रिपरेशन एंड यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। देखो आपके पास ये होता है, देखो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जनरली POP उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी व्हाट, हेमी मतलब हाफ मॉलिक्यूल होता है वाटर का, हेमीहाइड्रेट,
तो कैल्शियम सल्फेट एंड हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इसका जनरली कॉमन नेम है, ठीक है, या फिर कॉमन नेम भी इसका पीओपी है और केमिकल नेम है इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो देखो पीओपी का जब उसमें क्या होता है कि जो पीओपी है उसको एटमॉस्फेयर यानी इस मटेरियल को जब एटमॉस्फेयर में रखा जाता है, एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर से ये जो मॉइस्चर है उसको इनटेक कर लेता है, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को क्या कर लेता है, ये इनटेक कर लेता है, जिसकी वजह से क्या फॉर्मेशन होती है, जिप्सम की फॉर्मेशन होती है, कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है कि एक व्हाइट कलर का होता है, यानी पीओपी होता है जो व्हाइट कलर का, जनरली पीओपी ये है आपके पास, ठीक है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है जो कि आपकी एज ए घरों पे भी यूज किया जाता है उसको वाटर प्रूफिंग करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वाटर प्रूफिंग करने के बाद क्या होगा, देखो जो वॉल्स है आपने देखा होगा कि वॉल्स पे पीओपी यूज किया जाता है, ठीक है, उसको क्या है, क्या बनाने के लिए, वाटर प्रूफिंग देने के लिए, वाटर प्रूफिंग टेक्नोलॉजी के लिए पीओपी यूज किया जाता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर से जब वो वाटर को इनटेक करेगा तो वहां पे वो हार्ड एक जिप्सम फॉर्म कर लेगा, क्या फॉर्म कर लेता है दीवारों पे, जिप्सम। तो जिप्सम क्या होता है, एक व्हाइट कलर का वेरी हार्ड सब्सटेंस होता है, व्हाइट कलर का वेरी हार्ड सब्सटेंस होता है, और इसी हार्ड सब्सटेंस की वजह से वो मटेरियल है जो वॉल्स आपकी वाटर प्रूफ हो जाती है, राइट। जैसे आपने क्या की एक कई बार बोन क्रैक हो जाती है, बोन क्रैक हो जाती है जब, तो जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर भी उसको बोन को क्या की रिपेयर करने के बाद, उसको जोड़ने के बाद, जॉइंट लगाने के बाद वहां पे उसको एज ए पीओपी क्या है कि पीओपी को कवर कर देता है ताकि उसको हार्डनेस मिले कुछ टाइम तक, ठीक है, उसको स्ट्रेंथ मिले, राइट। तो ऑन हीटिंग जिप्सम, तो जब हम जिप्सम को, यानी कि हमने इस रिएक्शन को देखो, अब हमने क्या करना है, जिप्सम को हीट करना है, जिप्सम को क्या करना है, हीट करना है, ताकि आप क्या की पीओपी की फॉर्मेशन कर सको, राइट। तो जब जिप्सम की क्या होगी, हीटिंग होगी, देखो ये है आपका जिप्सम। तो जब आप जिप्सम को हीट करोगे, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जब आप इसको हीट करोगे तो आपको क्या है, क्या मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जब आप इसको हीट करोगे, किस कौन से टेम्परेचर पे, 373 केल्विन टेम्परेचर पे। So it lose water molecule and become calcium sulfate hemihydrates. This is called the plaster of Paris. The substance which doctor use as a plaster for supporting the fractured bone in the right position. Plaster of Paris is a white powder and on mixing with water, water के साथ mix होने पे it changes to gypsum. Once again giving a hard solid mass. Note that only half a water molecule is shown to be attached as water of crystallization. How can you get half of water molecule? It is written in this form because two formula units, क्योंकि जो दो formula units कैल्शियम सल्फेट की है वो शेयर करती है 1 molecule of water. Plaster of Paris used for making the toys. Material यूज किया जाता है for decoration and for making surface smooth. Okay, so this is all about the plaster of Paris and its uses. सो बेसिकली जो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसके यूज से ही आते हैं, और एक जिप्सम का फॉर्मूला पूछा जाता है एग्जाम में कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या है। तो जिप्सम का फॉर्मूला में देखो याद रखना 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, और हेमीहाइड्रेट्स जो पीओपी होता है उसमें क्या होता है, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है, ठीक है। तो यही यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। So thanks for watching this video. Please subscribe our channel if you really like the video. और हाँ, टेस्ट जो डिस्क्रिप्शन लिंक में क्या कि जो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, ठीक है, वहां पे क्या कि आपको इस वीडियो से रिलेटेड जो टेस्ट है वो मिलेगा, प्लीज उस टेस्ट को जरूर दे, ठीक है। वही टेस्ट क्या कि आपको पता लगेगा कि आपने कितने मार्क्स वहां पे अचीव किए हैं। जैसे क्या कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 मार्क्स का बनेगा वो क्वेश्चन टेस्ट होगा, तो अगर 10 में से क्या कि आपके 8 या 9 आते हैं या 10 आते हैं तो तब आप क्या कि मान सकते हो कि आपने ये वीडियो को अच्छे से देखा है। अदरवाइज आप वीडियो को दोबारा देखो, समझो, कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।